My dear respected and valuable YouTube viewers, narcissism or narcissistic personality disorder, what is the meaning and what type of this disorder, इसको मैं इंग्लिश के बाद हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। वी लिव इन अ हाईली कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। द वे ऑफ लाइफ is not straight but a zigzag. There are many ups and downs. In this complex situation, people behave differently. There are many types of psychological disorder. In the behavior of human beings, sometimes we are perplexed, confused and puzzled to see what this man is, why he behaves like this. We should know about this personality order or disorder, the behavior of human being. Narcissism, a disorder in which a person has an inflated or exaggerated sense of self-importance or admiration. Symptoms includes an excessive need of admiration, disregard for other feelings, an inability to handle क्रिटिसिज्म। ये एक तरह की बीमारी है जिसमें वह व्यक्ति जो इस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है, उसमें एक तरह का अहंकार का बोध हो जाता है, उसमें आत्म मुग्धता आ जाती है, आत्म पूजा आ जाती है, एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कद्र नहीं करता और यह चाहता है कि उसकी प्रशंसा किया जाए। वो आत्ममुग्धता का शिकार हो जाता है। एक्सैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, उसके अंदर इस तरह की फीलिंग्स आ जाती है। एंड ही हैज लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स। द एडवांस स्टेज ऑफ नार्सिसिज्म is dangerous. According to Wikipedia, narcissism is the pursuit of gratification from vanity or egotistic admiration of one's idealized self. Admiration, one's idealized self-image and attributes. The term originated from Greek mythology, where a young man named Narcissus fell in love with his own image reflected in a pond of water. The word narcissism get tossed around a lot in our selfie-obsessed, celebrity-driven culture. Narcissism is a type of disorder in which a person feels all the time that he is superior to other. He wants that the people should admire him. He always wants his personality more centric than others. He is very much empathetic and never respect the feelings of others. And this is very dangerous.
especially when this type of disorder comes into the politician, that politicians may be dangerous for the society and for the nation. Every narcissist or the person who has such type of disorder, he thinks that he is very much handsome. He is looking better than others. He wants dominance in the society. He is attention seeker and a very selfish and self-centric person. And this is a psychological disorder. Family therapy, psychological treatment, and that person needs and much attention, because this type of person generally very obstinate person, and you have to balance with him because he does not want to understand you. He does not want to hear you. He has no respect for you. आत्ममुग्धता की इस चरम स्थिति को मनोवैज्ञानिकों ने एक बीमारी कहा है और इसका नाम नार्सिज्म रखा है। इस डिसऑर्डर से जो भी व्यक्ति ग्रसित होता है उसमें एक तरह की आत्ममुग्धता आ जाती है, उसमें अहंकार का बोध आ जाता है, उसमें आत्म मोह, आत्म पूजा की स्थिति उत्पन्न होने लगती है और वो यह सोचता है कि वह दुनिया में अन्य लोगों से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें सुपीरियरिटी का भाव आ जाता है और वो दूसरों को हीन समझने लगता है। सिगमंड फ्रॉइड ने इस पे काफी रिसर्च किया और एक आर्टिकल लिखा ऑन नार्सिज्म। इस आर्टिकल पे बाद में काफी रिसर्च हुआ। नार्सिज्म ये जो लफ्ज है, ये वर्ड ग्रीक माइथोलॉजी से आया है। नार्सिज्म शब्द की उत्पत्ति यह बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि ओविद के मेटामॉर्फिस बुक के ग्रीक पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि सेफिशस और अप्सरा लिरियोप के पुत्र का नाम नार्सिसस था। नार्सिसस नाम के इस व्यक्ति को अपने छवि से, अपनी सुंदरता से, अपने चेहरे की सुंदरता से इतना प्यार हो गया, इतना आकर्षण हो गया कि वह नदी में घंटों बैठकर नदी के पानी में अपने चेहरे को निहारता रहता था और उसमें यह फीलिंग हो गई कि उससे जैसा हैंडसम और उसके जैसा सुंदर कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उसने जिंदगी भर इसी छवि के कारण शादी नहीं किया, क्यों कि वह चाहता था कि जितना सुंदर वो है उतनी ही सुंदर उसकी प्रेमिका हो। और इसका नतीजा यह हुआ कि उसने अंत तक शादी नहीं किया और उसने महसूस किया कि हम ऐसा प्यार नहीं पा पाएंगे और आखिर में उसके अंदर जलती हुई जुनून की आग में वह पिघल गया और कहा जाता है कि वो एक सुंदर सफेद फूल में परिवर्तित हो गया। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिस व्यक्ति में हो जाता है वह यह चाहता है कि उसकी प्रशंसा की जाए, हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे।
जब उसको उसके हिसाब से सम्मान नहीं मिलता या कहीं पर भी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको अतिरिक्त सम्मान या स्पेशल ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं किया जा रहा है, तो वह नाराज हो जाता है और इसके साथ ही साथ उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी असफलता, अपने अनसक्सेस या नाकामयाबी को दूसरों पर थोपता है और यह सोचता है कि दूसरे के कारण वह नाकामयाब है, दूसरे के कारण वह असफल है। वो स्वयं अपना कारण नहीं तलाश करता कि उसके भीतर क्या कमी है, क्यों वो नाकामयाब है, वो क्यों असफल है। ऐसा व्यक्ति जिसमें इस प्रकार का डिसऑर्डर पाया जाता है, वह बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता है। जनरल लोगों के साथ, जनरल मासेस के साथ वो बैठने उठने में हीन महसूस करता है। वो सोचता है कि मैं तो सुपीरियर हूं, मैं सुपीरियर हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं हैंडसम हूं, मैं बड़े लोगों के साथ बैठूंगा। उसको बाकी लोग हीन दीन समझ में आते हैं। यह डिसऑर्डर बहुत ही खतरनाक है एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस फॉर दैट पर्सन एंड ऑल्सो फॉर द फैमिली मेंबर्स। इस डिसऑर्डर से जो भी लोग ग्रसित हैं, ऐसे लोग किसी की तारीफ सुनना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ किया जाए, उनकी प्रशंसा किया जाए और इसके साथ ही साथ जब यह डिसऑर्डर बढ़ता है तो उनके अंदर जो स्वाभिमान है वो अभिमान में बदल जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति की ओर भी आकर्षित हो जाता है। वो ये चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें। ऐसा व्यक्ति जो इस डिसऑर्डर का शिकार है, वो दूसरों का मजाक उड़ाता है, दूसरों का मजाक उड़ाकर, दूसरों की बेइज्जती कर वो इंजॉय करता है, उसको आनंद महसूस होता है। मगर अगर उसी व्यक्ति की कोई बेइज्जती कर देता है या कटाक्ष कर देता है या किसी भी तरह का मजाक करता है, तो वह व्यक्ति आग बबूला हो जाता है। वह दूसरे का तो मजाक उड़ाता है, मगर जब उसका कोई मजाक उड़ाता है तो वह इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह क्रिटिसिज्म, आलोचना को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक तरह से उसके भीतर तानाशाही की प्रवृत्ति हो जाती है। नार्सिसिज्म इज अ वेरी डेंजरस डिसऑर्डर समटाइम्स, और जब यह एडवांस स्टेज में पहुंचती है तो न केवल यह उस व्यक्ति को प्रभावित करती है, बल्कि उस व्यक्ति के पूरे परिवार को प्रभावित करती है, उसके भविष्य को प्रभावित करती है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति इतना आत्ममुग्ध हो जाता है कि वो किसी के यहां विवाह में, मैरिज पार्टी में जाता है तो वो चाहता है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उसको स्पेशल जगह मिले और उसको हर वक्त एक अटेंडेंट मिले और उसको किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। विवाह समारोह में जहां इतने लोग रहते हैं, वहां अगर किसी भी तरह की कोई कमी होती है तो वो वहां आमादा फसाद हो जाता है। ऐसे लोग उस समारोह की जो जीनत है उसको कम कर देते हैं। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो न केवल शादी ब्याह में, बल्कि अगर किसी के यहां मरने जीने में जाते हैं तो वहां भी उनका वही एटीट्यूड रहता है, वही उनका सोचने और समझने का रहता है कि वो चाहते हैं कि वहां पर भी ऐसे गमज़दा माहौल में भी उनकी इज्जत हो, उनका स्पेशल ट्रीटमेंट दे, लोग उसकी तरफ अटेंशन दें।
इस तरह के व्यक्ति काफी परेशानी क्रिएट करते हैं। हम कभी कभी देखते हैं स्पिरिचुअलिज्म में भी कि कोई बाबा या साधु या संत या आध्यात्मिक पुरुष जब वो थोड़ी बहुत तपस्या करने लगता है तो वो सोचता है कि वो बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा बाबा है, और वो अपने स्पिरिचुअलिज्म में इतना आत्ममुग्ध हो जाता है कि वो समझता है कि उसके पास बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है और उसके हाथ में बहुत कुछ है। वह जो चाहेगा वो करेगा, जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, बाबाओं का भी खेल देखते हैं, आध्यात्मिक लोगों का भी खेल देखते हैं कि वो आध्यात्मिक बात कर आत्ममुग्ध होकर नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं, और वो किस तरह से अपने भक्तजन को, आम जनता को, आम पब्लिक को वो किस तरह स्वयं शिकार होते हैं और दूसरों को भी शिकार बनाते हैं, स्वयं अंधविश्वास में जीते हैं और दूसरों को भी अंधविश्वास के गड्ढे में ढकेल देते हैं, दूसरों का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं, समाज को भी दूषित कर देते हैं। नार्सिज्म, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर राजनीति में प्रवेश करती है और किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है तो वह राजनीतिक, वह सियासतदान, वह पॉलिटिशियन उस समाज के लिए खतरा बन जाता है। न केवल उस समाज के लिए बल्कि उस मुल्क, उस देश के लिए भी खतरा बन जाता है। क्यों? कि उसके भीतर जो सुपीरियॉरिटी एटीट्यूड डेवलप कर जाता है, उसके अंदर जो तानाशाही की प्रवृत्ति डेवलप कर जाती है, उसके अंदर जो इस बात की प्रवृत्ति हो जाती है कि लोग उसकी चापलूसी करें, लोग उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ी बड़ी फोटो और होर्डिंग जगह जगह लगाई जाती है, हर जगह उसकी फोटो होर्डिंग लगाई जाती है और वो आत्ममुग्ध होता है। वो चाहता है कि देश के कोने कोने में, एक एक पेड़ पर, एक एक खंबे पर, एक एक जगह उसके बड़े बड़े, बड़ी बड़ी फोटो लगा दिया जाए, बड़ी बड़ी स्टैचू खड़ी कर दिया जाए। वो आत्ममुग्ध हो जाता है। हमने देखा कि किस तरह जर्मनी तबाह हो गया एक आत्ममुग्ध नेता के कारण, लीडर के कारण। हमने देखा कि किस तरह इटली तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया। हमने हिस्ट्री और तवारीख में देखा है कि इस तरह के नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अगर पॉलिटिशियंस किसी मुल्क में हो गए तो वह मुल्क तबाह हो गया। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम बच्चों को शुरू से इस डिसऑर्डर से बचाने की कोशिश करें। बचपने में कभी कोई बच्चे जिद करते हैं और पेरेंट्स उसकी जिद को पूरा करते हैं, उसको ना नहीं कहते। वही लड़का बाद में बड़ा होकर ऑब्स्टिनेट हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। वो चाहता है कि जो भी वो अपने माँ बाप से या किसी से कहें, कोई ना कहे। क्यों? कि ना सुनने की उसकी आदत खत्म हो जाती है। वही बच्चा बाद में जाके इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। जब हम देखें कि अगर किसी में इस तरह का कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ ज्यादा विनम्रता से मिलें, हम उसके साथ बातचीत करें, हम टॉक थेरेपी का प्रयोग करें, हम उससे दूरी ना बनाएं, हम उसको इस बात का एहसास कराएं कि हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको इज्जत करते हैं, और धीरे धीरे उसके जो ये एटीट्यूड है उस एटीट्यूड को दूर करने की कोशिश करें। एक साइकोलॉजिकल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, लव थेरेपी जब हम उसको देते हैं तो वो धीरे 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 इस डिसऑर्डर से दूर होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, कहा यह जाता है कि ये नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ज्यादातर
पुरुषों में पाया जाता है। मगर जैसे जैसे सोसाइटी रिच हो रही और जैसे जैसे हम फैशनेबल सोसाइटी में जा रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि यह डिसऑर्डर पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों में भी पाया जाने लगा है। स्त्रियां भी ईगोइस्टिक अप्रोच की शिकार हो गई हैं। यह जो डिसऑर्डर है, यह एक तरह का समाज के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। हमें चाहिए कि हम एक नेचुरल वे में अपनी जिंदगी जिएं, एक नेचुरल तरीके से अपनी जिंदगी जिएं। जब भी हम आर्टिफिशियल या हम बनावटी मसनवी जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं, तो इस तरह का डिसऑर्डर जरूर हमारे भीतर पैदा होता है और हम ज्यादा से ज्यादा लग्जरी की तरफ, ज्यादा से ज्यादा अशांति की तरफ, ज्यादा से ज्यादा एक ब्लाइंड कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं और यह हमारी जिंदगी को जहरीला बना देता है। हमारी जिंदगी अशांत हो जाती है, हमारी जिंदगी जहरीली हो जाती है, हमारे जीने का मकसद भटक जाता है। हम जीवन का आनंद नहीं लेते, जीवन का अमृत नहीं पीते, बल्कि जीवन का जहर पीते हैं। तब हमको महसूस होता है कि हमारा जीवन भारी लग रहा है, बोझिल हो रहा है, इसका कोई मकसद नहीं है, इसकी आत्मा खो रही है, इसकी सुंदरता खो रही है। हम शरीर हो जाते हैं, आत्मा विलुप्त हो जाती है। इसलिए नार्सिज्म is a very dangerous phenomena. It is very dangerous disorder, and it is the duty of the parents and the society to control this in the very beginning stage. Thank you very much.